Hello friends, I am Rohit Agarwal from Blueprint Digital. Today we are going to discuss about an important chapter of class 10th mathematics, that is chapter 4 quadratic equations. So students, before we start our chapter, let us have a brief overview of what this chapter contains. Topics we are going to discuss in this chapter. There are four important topics that I have mentioned here which are to be discussed in this chapter. First one is what are quadratic equations? हमारी quadratic equations होती क्या है? Second है what are the roots of the quadratic equation? हमारे कितने roots हो सकते हैं quadratic equation को और किन values को हम roots कहते हैं? थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें हमारा आता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने के कितने मेथड हैं और उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है. द फोर्थ एंड फाइनल टॉपिक इज द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स मींस कि आइदर द रूट्स आर रियल और द रूट्स आर अनरियल और नॉन रियल. So we will find by a method that either the roots of a quadratic equation are real or non-real in nature. Students, before we jump to our topic, what are quadratic equations? First learn what are quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. Let us say it again. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. It is of the form of ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a can never be equal to 0. Now jump to our next topic, what are quadratic equation. As we have learned, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial when we equate a quadratic polynomial to 0. That is, when we equate a equation of form ax square plus bx plus c equal to 0, it becomes a quadratic equation. It is also called the standard form of a quadratic equation. What is it called? It is called standard form of a quadratic equation where, remember, a, b, c are real numbers and a can never be equal to 0. Why I am focusing again and again on a cannot be equal to 0? Because if our a becomes 0, our ax square term will eliminate from this equation and our equation will become like this: bx plus c equals to 0, which is a linear equation, not a quadratic equation. Therefore, remember, then in a quadratic equation, the coefficient of x square, that is a, can never be equal to 0. Now, also look at some examples of a quadratic equation. We have known that this is a standard equation. Ax square plus bx plus c equals to 0 is a standard equation. So, some examples I am keeping in front of you. 3x square minus 5x plus 6 equals to 0 is a quadratic equation. 5x square minus 9 equal to 0 is also a quadratic equation. 9x square minus 7x equals to 0 is also a quadratic equation. You will see that here a, b and c, all three are present here. But here our b term is not present. So that this will also be a quadratic equation. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे b की टर्म नहीं है तो ये quadratic equation नहीं होगी. हमने आपको बताया कि quadratic equation के लिए हमारा a 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हमारा a 0 नहीं है तो ये भी quadratic equation नहीं होगी. ऐसा ना समझे कि यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो ये quadratic equation नहीं होगी. Similarly, यहाँ पे हमारी constant term, that is c जो है वो absent है, पर फिर भी ये quadratic equation होगी क्योंकि हमारी x square की टर्म यहाँ पे present है. So students, our next topic is roots of a quadratic equation. अब पहले हम आपको बताएं कि quadratic equation के roots क्या होते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि quadratic polynomial के zeros क्या होते हैं. Quadratic polynomial जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, ax square plus bx plus c की कोई जो फॉर्म होती है इसको हमें quadratic polynomial कहते हैं. अब हम zeros किसको कहते हैं?
any real number let us say k which satisfies the given quadratic polynomial is called the zero of the quadratic polynomial. अब यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है. सेटिस्फाई का मतलब लेट अस this is a polynomial px equals to ax square plus bx plus c. When we substitute this real number k in place of x, हमने क्या करा है यहाँ पे x की जगह जो हमारा रियल नंबर k है उसको अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है. और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके इक्वल टू अगर जीरो आता है तो हम कहेंगे that this real number k is the zero of the quadratic polynomial. यहां पे बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करा है px equals to x square plus 5x minus 6. अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका क्या जीरो होगा. हमने एक वैल्यू लेट करी है 1. इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है. उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x ये वैल्यू को x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमने देखा ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 minus 6 which is equals to 1 plus 5 minus 6 which is equals to 6 minus 6 that is 0. So on substituting 1 in the given polynomial our polynomial become equals to 0. So we can say that 1 is the zero of the polynomial x square plus 5x minus 6. अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि कोई भी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हम जीरो किसको कहते हैं, एक ऐसा रियल नंबर जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे उसे हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं. अब ये तो बात हो रही थी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की. अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए. द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम उसके जीरोस निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं तो दे बोथ आर द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट. अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से उसके जीरोस निकाल रहे हैं या अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल रहे हैं, दे बोथ आर द सेम थिंग. इसको हम बच्चों सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन भी कहते हैं कभी कभी. तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों हम सेम टर्म्स की तरह इंटरचेंज करके यूज भी कर सकते हैं. अगर हम उसको जीरोस कहें, रूट्स कहें या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहें तो दे ऑल आर द सेम थिंग. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एज आई हैव told you earlier that a quadratic equation is a polynomial of degree 2. So a quadratic equation can have at most two zeros because number of zeros depend on the degree of the polynomial of the equation. So a quadratic equation is a equation of degree 2, so it can have at most two zeros, that is it can have maximum a number of two zeros. अब अपने आप पहले मेथड की ओर चलते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड. इसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आप पिछली क्लासेस में इसके क्वेश्चन करते आ रहे हैं. पर यहाँ पे मैं फिर भी रिवीजन के तौर पे आपको ब्रीफ में समझाने जा रहा हूँ कि इस मेथड का बेसिक लॉजिक क्या है. यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जिसे हम दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं. ये हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं क्योंकि इनकी डिग्री क्या है बच्चों, यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे लीनियर फैक्टर्स. यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने उसे दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया है. अब इन लीनियर फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली इक्वेट कर देंगे जीरो के. ऐसा करने पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और ये जो दो वैल्यूज है माइनस क्यू अपॉन पी एंड माइनस एस अपॉन आर, दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अभी मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक बताया कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं। हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं, पर उसके पीछे भी बच्चों एक पूरा लॉजिक वर्क करता है, जिसको मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से जिससे आपको समझ में आ जाए उसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, फिर हमारी एक्स की टर्म आनी चाहिए और फिर हमारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है अपने तीनों ही मेथड में, चाहे वो कोई भी मेथड हो। हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। जब हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो हमारा सबसे पहले काम है कि हमने अपनी इक्वेशन में से एबीसी आइडेंटिफाई कर ले। मैं साथ में साथ आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाता हूं, जिससे आपको ये मेथड्स टफ ना लगे और आपको समझने में भी आसान हो जाए। मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से अरेंज है तो मुझे इसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको एज इट इज फर्दर अपनी स्टडी के लिए आगे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा a क्या है बच्चों 2, b क्या है -7 और c क्या है -39। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाई a b c। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ac। तो हमारा ac क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -39 विच इज इक्वल्स टू -78। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्प्लिट b दैट इज -7 into two parts p and q such that p plus q equals to b and pq equals to ac। ये हमारा इस पूरे मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने अपना ac फाइंड कर लिया है जो कि है 78। ठीक है, अब हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो हमने 78 को ब्रेक कर लिया अपने उसको दो पार्ट में -13 और 6। ठीक है, ये हमने अपने b को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में p और q -13 एंड 6। अब आप देखेंगे -13 प्लस 6 इज इक्वल्स टू -7। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, p प्लस q इक्वल्स टू b। सेकेंड कंडीशन -13 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -78। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज pq इक्वल्स टू ac। सो वी कैन राइट आवर इक्वेशन 2x square minus 7x minus 39 equals to 0 as 2x square minus 13x plus 6x minus 39 equals to 0। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा फाइनल स्टेप, फैक्टराइज इक्वेशन इन स्टेप 3 दैट इज दिस बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ग्रुपिंग द टर्म्स मतलब हम दो टर्म्स को आपस में उनमें देखेंगे उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है और उसकी हेल्प से हम इसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी पहली दो टर्म्स में केवल x कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर निकलेगा वो आएगा 2x माइनस 13। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे हमारा 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x माइनस 13। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हमेशा सेम बनने चाहिए आपके, ये कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते। अब हम इसको पूरे में से कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 13 को, तो हमारे पास एक इस तरीके की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि गिवन ये थी, हमने उसे दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग इक्वेट करेंगे जीरो को, और वहां से हमारी दो जीरोस ऑब्टेन हो जाएंगे। तो 2x माइनस 13 को जब हम इक्वेट करेंगे जीरो से, तो वहां पे हमारी x की वैल्यू आएगी 13/2, और जब हम x प्लस 3 को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो वहां पे हमारी x की वैल्यू आएगी -3। तो हम कह सकते हैं कि दैट 13/2 and -3 are the roots of the quadratic equation 2x square minus 7x minus 39 equals to 0. You can also check your solution by substituting these values one by one in the given equation. अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से बच्चे इसको ट्रिकी भी समझते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड की हेल्प से भी हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस मेथड का ब्रीफ क्या है। इस हमारी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे कि पिछला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वहां पे हमने इसको दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करा था, पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसे एक ऐसी फॉर्म में लाएंगे
ये स्क्वायर फॉर्म कहलाती है। हम इसको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे जहां पे हमारे पी और क्यू के होंगे बच्चों कांस्टेंट होंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं अपने इस मेथड से रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला मेथड आप ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। सपोज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें bx प्लस ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसके बाद ही हम अपने इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। हमारा पहला स्टेप है डिवाइड बाय कोफिशिएंट द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज a। यहां पे हम क्या करेंगे, अपनी पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। दिस इज डन टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। यूनिटी मींस 1। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। कांस्टेंट टर्म मींस विदाउट x, तो our constant term is c upon a, so we will move it to the right hand side. Our equation will become x square plus bx upon a equals to minus c upon a. Next step, add square of half of the coefficient of x on both sides. First of all, identify the coefficient of x. Here our coefficient of x is b upon a. अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो b अपॉन a को जब हम हाफ से वो करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। फिर हमें क्या कहा गया कि हमें इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इस टर्म को हम अपनी इक्वेशन में बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब अगला स्टेप, सिंप्लीफाई LHS एज परफेक्ट स्क्वायर। अब हम अपनी इस टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर का रूप देंगे, मतलब होल स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये टर्म रह जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a, और इक्वल टू में कोई टर्म होगी उसको भी हम स्क्वायर रूट करेंगे। पर वहां ध्यान रखिएगा बच्चों, हम उसका स्क्वायर रूट तो करेंगे और उसके आगे हम अपना ये प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो जीरोस या रूट्स होंगे। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें केवल एक ही रूट फाइंड आउट होगा। तो एक बार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद प्लस साइन और एक बार हम उसे सॉल्व करेंगे विद नेगेटिव साइन टू ऑब्टेन आवर बोथ रूट्स। लास्ट स्टेप हमारा यही है कि हम x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब हम अपनी जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे टू ऑब्टेन आवर रिक्वायर्ड बोथ रूट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इस मेथड को और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम जो स्टेप बाय स्टेप हमने अभी पीछे आपको पढ़ाए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही अरेंज है, तो इसे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा स्टेप 1 याद करिए क्या था, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। सो फॉर दैट वी विल डिवाइड आवर होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर which is 2 here. So we are going to divide our equation by 2. On dividing we will get this equation. 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा x स्क्वायर रह गया, x को 2 से डिवाइड करा x अपॉन 2, 4 को 2 से डिवाइड करा 2 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था बच्चों टू मूव द कांस्टेंट टर्म दैट इज -2 ऑन द राइट हैंड साइड। सो our next step becomes this, x square plus x upon 2 equals to 2। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ b which is 1 upon 2। ठीक है। हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, 1 upon 2। इसे हम 1 upon 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 upon 4। फिर हम बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, वो क्या होगा 1 upon 16। अब इस टर्म को हम इस इक्वेशन की बोथ साइड्स में ऐड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 16। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस टर्म को एज अ परफेक्ट स्क्वायर शो करना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह हम कैसे शो करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एलसीएम। तो ये टर्म हमारी आ जाएगी 32 प्लस 1 दैट इज 33 अपॉन 16। ठीक है, अब हमारी ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म हमारी रह जाएगी x प्लस 1 अपॉन 4। पर जैसा कि मैंने आपको पीछे भी समझाया था, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम अपना प्लस और माइनस दोनों साइन अप्लाई करेंगे। 33 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे हम रूट 33 शो करेंगे, और 16 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे हम 4 लिखेंगे। अब बच्चों हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जो हमारा 1 अपॉन 4 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, बट 1 बाय 1, फर्स्ट बाय यूजिंग द पॉजिटिव साइन एंड सेकंड टाइम बाय यूजिंग द नेगेटिव साइन। तो इट विल बी गेट x इक्वल्स टू रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 बाय 4। बाय टेकिंग एलसीएम so we can say root 33 minus 1 upon 4 and I am taking negative sign common from here minus bracket root 33 plus 1 upon 4 are the roots of the equation 2x square plus x minus 4 equals to 0। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि इस मेथड की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही अपने क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। पर जैसा कि आपने यहाँ पे इसके रूट्स देखे हैं, ये रूट्स रियल तो हैं पर ये क्या है, इरेशनल है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन ओनली फाइंड द रेशनल रूट्स, वी आर नॉट एबल टू फाइंड रूट्स लाइक दिस यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसलिए हमें एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या हम कहीं एक दूसरे मेथड की जरूरत पड़ी अपने रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते करते आरएचएस में एक नेगेटिव टर्म बन जाती है। ठीक है, तो वहां पे हम उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहां पे लिखा जाता है द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उसी तरीके का मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिया है जिससे आपको इसको समझने में वो लगे कि हमें किस तरीके से नॉन रियल रूट्स ऑब्टेन होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है तो हमें से कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप है टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4। ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ओके, now we will shift our constant term to the right hand side, so we will obtain x square plus 4 plus 3x upon 4 equals to minus 5 upon 4. Next step is to divide the coefficient of x, that is 3 upon 4 by 2. So we will obtain 3 upon 8. On squaring 3 upon 8 we will get 9 upon 64. We are going to add this term on both sides of the above equation. So our equation will get x square plus 3x upon 4 plus 9 upon 64 equals to minus 5 upon 4 plus 9 upon 64. We will make it as a perfect square. So it will come like this. X plus 3 upon 8 का whole square equals to, solving the right hand side, taking LCM, so our RHS comes out to be minus 71 upon 64. As we all know in our previous classes that a square of a negative number is also positive and a positive number is also positive. So a square term can never be negative. So we can say that it cannot be solved. So the given equation has no real roots. The last method of finding the roots of a quadratic equation is quadratic formula.
quadratic formula is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में अपने a b c को आइडेंटिफाई करना है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term, and you have to substitute these values in the quadratic formula. You will obtain two values by using it, like minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a. First root is obtained by using this formula, and the second root by minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a. एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरीके से रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। हमने अपने एबीसी लिखे, ए हमारा क्या होगा 1, बी हमारा है 6 एंड सी इज इक्वल्स टू -10। Substitute these values of a, b, c in the quadratic formula to obtain the roots, like x equals to -6 plus minus under root b का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर minus 4, a की जगह हमने रखा 1 और c is -10 upon 2a मतलब 2 into 1. On solving we will get -6 plus minus under root 36 minus 4 and minus 10 will get plus 40. 2 into 1 is 2. On solving 36 plus 40 is 76. On factorizing 76 we will get -6 plus minus 2 under root 19 upon 2. On dividing the equation by 2 we will get -3 plus minus root 19. So -3 plus root 19 and -3 minus root 19 are the roots of the quadratic equation x square plus 6x minus 10 equals to 0. This is a quadratic formula and an easy method to find the roots. अब स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि या तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या नॉन रियल होंगे। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक छोटा टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, फिर एंड में हम चेक करते हैं कि हमारे रूट्स रियल आ रहे हैं नॉन रियल आ रहे हैं। पर उस मेथड को अवॉइड करने के लिए हमने छोटा मेथड इवॉल्व किया है, जो है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पे टर्म आती है ये बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। इस b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं d या डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, which depends the nature of roots depends on the value of d। ठीक है, कि हमारी जो भी वैल्यू होगी d की वो हमें हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि हमारा नेचर क्या होने वाला है रूट्स का, दैट इज रियल और नॉन रियल। इस चीज को भी हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। वो क्या है, पहला है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हमारा नेचर क्या होगा रूट्स का, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस that both the roots are different values. Let's say one root is -1 and the other may be 3, or one root is 2 and one root is 5. They may be any numbers, but they will be different from each other, real and distinct. Second case is b square minus 4ac is equals to 0. That is the value of discriminant is equals to 0. Here also the roots will be real, but they are equal also. ठीक है, हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे पर इक्वल भी होंगे। लेट्स से कि हमारे दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आ जाए 1/2 1/2 और एनी अदर रियल नंबर। एंड द थर्ड केस इज कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और अ नेगेटिव नंबर, सो वी से दैट द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है बच्चों, एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। ये 3 फैक्टर्स में हमने b स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करा है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो इक्वल टू 0 होगी तो हमारे रूट्स जो होंगे रियल और इक्वल होंगे, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे रूट्स क्या कहलाएंगे, नॉट रियल।
अब हम स्टूडेंट्स कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है, हमें इन तीनों इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है कि आइदर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और नॉट रियल. So from starting from the first equation, here a equals to 3, b equals to -5 and c equals to 2. Substituting these values in b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equals to -5 ka square minus 4 into 3 into 2. This will become equal to 25 minus 4 3s are 12, 12 2s are 24, which is equals to 1, which is greater than 0. So we say that the roots of the equation 3x square minus 5x plus 2 equal to 0 will be real and distinct. Now move on to our second example. X square plus 4x plus 5 equals to 0. Here a is 1, b is 4 and c is 5. Substituting these values, we will get b square minus 4ac equals to 4 square minus 4, a is 1 and c is 5. So we will obtain 4 4s are 16 minus 4 1s are 4, 4 5s are 20. 16 minus 20 is minus 4, which is less than 0. So we can say that the roots of the equation x square plus 4x plus 5 equals to 0 are not real. We can also prove this by solving the following equation. हम इनको तीनों में से किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से प्रूफ भी कर सकते हैं पूरे प्रोसीजर से कि ये इसी तरीके से आएंगे या नहीं आएंगे. अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन पे. 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हियर a is 2, b is minus 2 root 2 and c is 1. Substituting these values, b square minus 2 root 2 square minus 4, a is 2 and c is 1. 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. रूट 2 का स्क्वायर 2. तो 4 into 2 is 8. And the square of a negative number is also positive. So 2 root 2 is minus 2 root 2 square is 8. 4 2s are 8. 8 1s are 8. So 8 minus 8 is equals to 0. Here b square minus 4ac comes out to be 0. So we can say the roots are real and equal. So by these examples, I think that the topic, the nature of roots will be clear to you all students. That's all for today's videos. We hope that you like this video. Do like and share this video and subscribe to our channel Blueprint Digital for more educational videos on mathematics and other subjects also.